صدیوں پرانی بات ہے۔ بغداد میں جنید نامی موتیوں کا ایک تاجر رہا کرتا تھا۔ کافی محنت اور بھاگ دوڑ کے باوجود بھی اسے اتنا منافع حاصل نہ ہوتا کہ وہ آرام سے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ بغداد میں اس کا کاروبار کسی بھی طرح سے چلنے یا اسے مناسب منافع دینے میں کامیاب ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بغداد سے منتقل ہو جائے، اور پھر وہ اپنا سارا سامان لپیٹ کر بصرہ چلا آیا۔ اور پھر اس کا وہی کاروبار جو بغداد میں نہیں چلتا تھا وہ خوب چل نکلا، بلکہ دوڑنے لگا۔ 2-3 سال ہی میں جنید نے اپنے کاروبار سے، اپنی محنت اور مشقت سے اپنے کاروبار میں اضافہ کر لیا۔ جب ایسے ہی کچھ عرصہ گزر گیا تو اسے اپنے آبائی شہر بغداد کی یاد آئی۔ اس نے سوچا کہ مجھے بغداد سے آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے اور اب یہاں میرا کاروبار بھی اچھا چل نکلا ہے، چلو کچھ دن کے لیے بغداد چلا جاتا ہوں، قریبی عزیز و اقارب اور اپنے پرانے دوستوں سے مل آؤں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنا بصرہ میں پھیلا ہوا کاروبار سمیٹا اور بغداد جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جنید جب بغداد سے بصرہ آیا تھا تو اس کی جیب میں چاندی کے صرف چند سکے تھے اور اب اس کے پاس چاندیوں کا ایک تھیلا تھا۔ اس نے اپنی اشرفیوں کو ایک چمڑے کے بنے ہوئے مضبوط تھیلے میں رکھا اور سفر کے لیے نکل پڑا۔ پورا دن گزر گیا اور شام ہو گئی۔ جنید ایک سرائے میں پہنچ گیا اور رات وہیں پر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اسی سرائے میں ایک ٹھگ اور بہت ہی شاطر قسم کا آدمی بھی موجود تھا۔ ٹھگ کا نام ابو القادر تھا۔ ٹھگ نے جنید کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ جنید کے پاس اچھی خاصی رقم ہے۔ اب وہ اسے اس کی رقم ہتھیانے کے لیے ترکیبیں سوچنے لگا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد وہ جنید کے پاس پہنچا اور جنید کو سلام کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ مجھے ابو القادر کہتے ہیں اور میں بصرہ سے بغداد جا رہا ہوں۔ سرائے کے مالک سے مجھے پتہ چلا کہ آپ بھی بغداد جا رہے ہیں۔ جب ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں تو کیوں نہ ہم ایک ساتھ ہی سفر کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک سے بھلے دو، باتیں کرتے ہوئے ساتھ چلیں گے تو سفر میں آسانی ہوگی۔ جی ہاں، میں بھی بغداد جا رہا ہوں اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور قریبی احبابوں سے ملنے کے لیے۔ یہاں بصرہ میں میرا کاروبار ہے۔ جنید نے بڑے اتباک سے کہا، ارے واہ، میں بھی ایک تاجر ہوں اور آج 10 سال کے بعد میں بغداد واپس جا رہا ہوں۔ سنا ہے کہ آج کل لٹیرے تاجروں کو راستے میں ہی لوٹ لیتے ہیں یا ٹھگ انہیں اپنی چکنی چوپڑی باتوں میں پھنسا کر ان کا مال ہتھیا لیتے ہیں۔ بس اسی خیال سے میں نے آپ سے مشورہ کیا تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں۔ بھلا جنید کو اس مشورے سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو خود ڈاکو اور لٹیروں سے خوف زدہ تھا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے ڈاکوؤں سے محفوظ رہنے کے لیے دعا بھی مانگ رہا تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ تاجر بھی میرا ہم سفر ہے اور اپنے وطن بغداد واپس لوٹ رہا ہے، اس کا اور میرا ساتھ مناسب رہے گا۔ اس نے یہ سوچ کر ابو القادر کے ساتھ سفر کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ اگلے روز دونوں ہی بغداد کی طرف جانے والے راستے پر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ابو القادر نے پوری طرح سے اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے جنید کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا اور اس نے باتوں ہی باتوں میں جنید سے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ طویل ریگستان کا علاقہ طے کرتے ہوئے وہ بغداد کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ ان دنوں بغداد میں نئے آنے والے تاجروں کو ایک ٹیکس کی ادائیگی کرنا لازم ہوتی تھی۔ ابو القادر جنید سے کہنے لگا، ہم بصرہ سے بہت محنت مشقت کر کے اور ایک ایک پائی جمع کر کے یہ دولت لے کر آئے ہیں۔ اگر ہم دونوں ہی خود کو تاجر ظاہر کریں گے تو ہم دونوں کو ہی ٹیکس کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ کیوں نہ ہم میں سے ایک ہی تاجر بن کر ٹیکس کی ادائیگی کرے اور دوسرا ایک عام شہری بن کے شہر میں داخل ہو، اور ایسے ہم میں سے ایک ٹیکس دینے سے بچ جائے گا۔ جبکہ جنید ایک خرا اور ایماندار آدمی تھا۔ وہ معمولی بات پر بھی جھوٹ بولنے سے اپنا دامن بچاتا تھا۔ لیکن جب ابو القادر نے اپنائی اور بہت خلوص بھرے انداز میں یہ کہا تو جنید نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں خود کو تاجر ظاہر کرتے ہوئے ٹیکس کی پوری ادائیگی کروں گا۔ شاید آپ میری بات کا غلط مطلب سمجھیں۔ میں اس لیے ٹیکس نہیں بچانا چاہتا کہ میں کنجوس ہوں، بلکہ اس لیے کہ خلیفہ وقت بہت فضول خرچ آدمی ہے۔ وہ ٹیکس سے وصول ہونے والا سارا پیسہ غلط کاموں اور عیاشیوں میں خرچ کرتا ہے اور یہ ہماری محنت کی کمائی ہے۔ چلیے ٹیکس میں ہی ادا کروں گا، بس آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ کم از کم ہم میں سے ایک بھائی کا پیسہ ٹیکس کے بہانے خزانے میں جانے سے محفوظ رہے گا۔ معاف کیجیے، واقعی آپ نے بہت اچھا نکتہ سمجھایا، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جنید نے افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اب ابو القادر نے بڑی اپنائی اور افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے جنید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، دیکھیں جنید بھائی، آپ نے مجھے بڑا بھائی کہا ہے اور یہ غلط بھی نہیں، کیونکہ میری عمر آپ سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے بڑا بھائی ہونے کے ناطے ٹیکس کی ادائیگی آپ نہیں بلکہ میں ہی کروں گا۔ آخر بڑے ہونے کے ناطے یہ فرض میرا ہی تو ہے۔ ابو القادر نے یہ بات بڑی اپنائیت اور نرمی سے کہی تھی اور جنید کو اس کی بات ماننا ہی پڑی۔ اب وہ بغداد میں داخل ہونے والے بڑے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ جناب، میں بصرہ کا ایک بہت بڑا تاجر ہوں
और मैं 10 साल के बाद बगदाद वापस आया हूँ। मेरे पास मेरी मलकियत में 15,000 अशरफियाँ हैं और ये मेरा मुलाजिम जुनैद बिन वलीद है। अबुल कादर ने दरवाजे पर खड़े मुलाजिम से कहा, ठीक है, आप टैक्स के तौर पर 10 अशरफियाँ जमा करवा दें। दरवाजे पर खड़े मुलाजिम ने कहा, 10 अशरफियाँ? ये कहते हुए अब्दुल कादिर ज़ोर से चीखा, हद मचा रखी है तुमने। मैं 10 अशरफियों का टैक्स अदा नहीं कर सकता। अगर आप 10 अशरफियों का टैक्स अदा नहीं कर सकते तो आप शहर में भी दाखिल नहीं हो सकते। दरवाजे पर खड़े मुलाजिम ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन इतना भारी टैक्स? ये टैक्स नहीं बल्कि आवाम का खून चूसने की बात है। अबुल कादर ने तीखे से अंदाज में कहा, जनाब ये गलत फहमी है आपकी। हुकूमत किसी से कोई टैक्स नहीं लेती, ये बस ताजिर हजरात पर ही लागू है और इसी रकम से हुकूमत तरक्याती काम करती है, अवाम को सहूलतें फराहम करने की कोशिश करती है। दरवाजे पर खड़े मुलाजिम ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की, अरे तुम तो खलीफा के ही हक में बात करोगे, तुमसे ज़्यादा खलीफा को मैं जानता हूँ। वो अवाम की भलाई के नाम पर ताजरों को लूट रहा है। अबुल कादर ने उसी अंदाज में कहा, खबरदार, अगर आपने एक लफ्ज़ और खलीफा के खिलाफ कहा तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दरवाजे पर खड़े मुलाजिम ने गुस्से भरे अंदाज में कहा और गुस्से के मारे उसका चेहरा सुर्ख हो गया और बात भी बहुत बिगड़ गई। जुनैद बिन वलीद ने आगे बढ़कर उन दोनों के दरमियान बच बचाव करवाया और वो अबुल कादिर को लेकर शहर में दाखिल हो गया। बसरा जाते वक्त जुनैद अपना पुराना घर भी फरोख्त कर गया था, इसलिए उसे रात गुजारने के लिए किसी सराय में क़याम करना पड़ा। अबुल कादिर की भी कुछ यही कैफियत थी। दोनों रात गुजारने के लिए एक सराय में ठहर गए। सराय पहुंचकर अबुल कादिर ने दोनों का सामान एक कमरे में रखवा दिया और फिर अपनी जेब से चांदी की 10 अशरफियाँ निकालते हुए बोला, लो ये रख लो। किस लिए? जुनैद ने हैरान होकर सवाल किया। ये तुम्हारी तनख्वाह है। कैसी तनख्वाह? अरे भाई तुम मेरे मुलाजिम जो हो, अबुल कादिर ने हंसते हुए कहा। जुनैद मुस्कुराते हुए बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं पूरी तरह से संजीदा हूँ। अबुल कादिर ने खुशी भरे लहजे में कहा तो जुनैद उसकी तरफ देखता का देखता रह गया। उसे अबुल कादिर की ये बात समझ में नहीं आई थी और ना ही अबुल कादिर का ये लहजा उसे पसंद आया और वो किसी बात में उलझना भी नहीं चाहता था। उसने सोचा कि अगर अबुल कादिर उसके साथ नहीं रहना चाहता तो कोई बात नहीं, वो किसी दूसरी सराय में जाकर ठहर जाएगा। वो अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगा तो अबुल कादिर ने उसके हाथ से सोने की अशरफियाँ छीनकर कहा, ये मेरी थैली लेकर कहाँ चले? अरे भाई अबुल कादिर, ये क्या हो गया है तुमको? आपको पता भी है कि ये थैली मेरी है और फिर आप इसे अपना कह रहे हैं। जुनैद हैरत भरे लहजे में बोला, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, मेरा मुलाजिम होकर मुझे ही आंखें दिखाता है। अबुल कादिर ने गुर्राते हुए गुस्से में कहा और एक जोरदार थप्पड़ जुनैद के रुखसार पर जमा दिया। थप्पड़ पड़ते ही जुनैद तो हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर पहुँचते ही अबुल कादिर को क्या हो गया है। उन दोनों का शोर शराबा सुनकर सराय में ठहरने वाले दूसरे मुसाफिर भी उनके पास पहुँच गए। अबुल कादिर ने चीख कर सबको बताना शुरू कर दिया कि ये मेरा मुलाजिम है, यहाँ पहुँचकर इसकी नीयत ख़राब हो गई है, मेरे सामान और मेरी दौलत को अपना सामान और अपनी दौलत कह रहा है। अब जुनैद समझ गया कि उसका वास्ता किसी बहुत चालाक और बहुत बड़े ठग से पड़ा है। अबुल कादिर ने अपनी सफाई का इजहार करते हुए कहा कि जनाब, मैं इसका मुलाजिम नहीं और मुझे मुलाजिम बताकर मेरी कई साल की रकम पर कब्जा करना चाहता है। ये सुनते ही अबुल कादिर जुनैद के साथ मरने मराने की बातें करने लगा। झगड़ा बढ़ने की सूरत में सराय के मालिक ने उन दोनों को लिजाकर काजी के सामने पेश कर दिया। सराय के मालिक से सारी मालूमात हासिल करने के बाद काजी बोला, किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि थैले में कितनी अशरफियां हैं। मैं बताता हूं, जुनैद ने कहा। लेकिन अबुल कादिर ने चीखते हुए कहा, नहीं काजी साहब, मैं बताता हूं कि इस थैले में कितनी अशरफियां हैं। इस थैले में कुल। तुम भी ठहर जाओ। काजी ने अपने हाथ का इशारा करते हुए अबुल कादिर को बोलने से मना कर दिया। मैं तुम दोनों से अकेले अकेले में पूछना चाहता हूँ। काजी ने यह बात इस ख्याल से कही थी कि जिसकी रकम होगी वही इस थैली में मौजूद असल रकम की तादाद बता सकेगा। काजी ने दोनों को अलग अलग बुलाकर पूछा और फिर अपने ख़ास मुलाजिम को कहकर उसकी तहकीक करवाई तो अशरफियाँ दोनों की बताई गई तादाद के मुताबिक थी। काजी जिस मामले को बहुत आसान समझ रहा था, अब वो बहुत उलझ चुका था। फिर काजी ने दोनों को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर तुम दोनों के पास कोई पुख्ता सबूत और कोई गवाह है तो वो पेश करो ताकि इस पर इंसाफ किया जा सके। यह सुनकर जुनैद गहरी सोच में डूब गया। बसरा यहाँ से बहुत दूर है और इतनी दूर से मैं भला सबूत और गवाह कहाँ से लाऊंगा। रहा बगदाद, जहाँ पर इसके दोस्त और करीबी रिश्तेदार तो थे, मगर उन्हें क्या मालूम कि मैं बसरा से 3000 अशरफियाँ जमा करके लाया हूँ। और दूसरी तरफ अबुल कादिर गवाह और सबूत का नाम सुनकर खुशी से चीख उठा। उसने मुस्कुराते हुए काजी से कहा कि काजी साहब,
शहर में दाखिले के वक्त मैंने दरवाजे पर खड़े मुलाजिम को टैक्स के तौर पर 10 अशरफियाँ दी थी। आप शहर के दरवाजे पर खड़े मुलाजिम से मेरी बात की तस्दीक करवा सकते हैं कि हम में से कौन मालिक है और कौन मुलाजिम। ये सुनते ही अबुल कादिर की आंखों के सामने तो अंधेरा सा फैल गया और वो समझ गया कि जुनैद का वास्ता किसी बहुत ही चालाक ठग से पड़ा है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, शहर के दरवाजे पर खड़ा मुलाजिम दिन भर के टैक्स वसूल करने के बाद काजी साहब के पास टैक्स जमा करवाने के लिए खुद वहां पर पहुंच गया। काजी ने उससे पूछा कि क्या तुम इन दोनों को जानते हो कि इनमें से कौन मालिक है और कौन मुलाजिम? जी जनाबे वाला, क्यों नहीं। ये कहते हुए उस टैक्स मुलाजिम ने अबुल कादिर को उसका मालिक और जुनैद को उसका मुलाजिम ठहरा दिया। तुमने जो कुछ भी कहा है, तुम्हें इस पर यकीन है? तुम्हें किसी किस्म की कोई गलत फहमी तो नहीं है? काजी ने इत्मीनान भरे लहजे में मुलाजिम से पूछा। जी जनाबे वाला, मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और मैं किसी किस्म की गलत फहमी का शिकार नहीं। टैक्स मुलाजिम ने बड़े इत्मीनान और ठोस लहजे में कहा। अब तो अबुल कादिर के लिए किसी किस्म की शक की गुंजाइश ही नहीं रही थी। सारे सबूत और गवाह अबुल कादिर के हक में थे। सब यही सोच रहे थे कि काजी अबुल कादिर के हक में ही फैसला सुनाएगा और जुनैद को सख्त सज़ा देगा। अपने मेहनत मुशक्क़त की कमाई हाथ से यूँ निकलते हुए देखकर जुनैद को बहुत अफसोस और दुख हो रहा था, लेकिन इतनी बड़ी रकम के अपने हाथ से निकलने से ज़्यादा उसे अपनी इज्जत का ख्याल था, जो आन की आन में तबाह हो जाने वाली थी। उसके किरदार पर अब इल्ज़ाम लगने वाला था। उसे अपनी ज़िंदगी के कुछ दिन बतौर सज़ा जेल में रहकर गुजारना पड़ेंगे। सदमे और इज्जत नाबूस पर धब्बा लग जाने के ख्याल से उसकी आंखें भर आई। वो दिल ही दिल में सूरह बकरा की एक आयत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन का विर्द करने लगा। उसने काजी को अबुल कादिर के मिलने और सफ़र की सारी तफसीलात को बताते हुए कहा, हजूर, ये शख्स कोई ताजर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ठग है। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? काजी ने जुनैद से कहा। जनाबे अली, कौम का टैक्स बचाने और चोरी के जुर्म में मुझे सज़ा न मिल जाए, मैंने इसी डर से ये नहीं बताया। जुनैद ने सारी हकीकत बताने के बाद कहा। यह सुनकर अबुल कादिर चीख उठा। उसने कहा, हजूर, इसने ये कहानी अपनी तरफ से गढ़ी है। ये लोगों का दिल जीतने और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ऐसा कहा है। काजी बहुत ज़हीन और समझदार था और वो अपने फैसले में किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि ठीक है, मैं इसका फ़ैसला कल सुनाऊंगा, क्योंकि सारी तहकीकात करने के बाद अबुल कादिर ही उस थैली का मालिक लग रहा है। इसलिए उसने थैली अबुल कादिर के हवाले करवा दी, लेकिन उन दोनों को अपनी अदालत से कहीं और चले जाने की इजाज़त नहीं दी और अपने मेहमान खाने में रखवा कर उनकी रखवाली के लिए अपने पहरेदार मुकर्रर कर दिए। अबुल कादिर को अपनी सोच समझकर की गई साजिश पर मुकम्मल एतमाद था, जबकि जुनैद को अपनी मेहनत और अल्लाह पाक की रहमत पर भरोसा था। वो दिल ही दिल में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन का विर्द करता रहा और फिर आराम से नींद की आगोश में समा गया। रात अपना आधा सफ़र तय कर चुकी थी कि अबुल कादिर अभी तक नहीं सो सका था। आहट सुनकर उठ बैठा और अपने सामने काजी साहब को पाकर बोला, अरे काजी साहब, आप? काजी साहब ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने के लिए कहा और फिर उसके करीब पहुंचकर सरगोशी भरे अंदाज में कहा कि इस वक्त मैं तुम्हारे पास एक बहुत ज़रूरी काम से आया हूं। आप हुक्म कीजिए जनाबे अली। अबुल कादिर ने आहिस्तगी से कहा। थोड़ी देर पहले मेरे पास जुनैद आया था। वो कह रहा था कि अगर आप मेरे हक में फ़ैसला कर दें तो वो इसमें से 1000 अशरफियाँ मुझे दे देगा। काजी साहब ने बड़े राजदाना अंदाज में कहा। तो आपने क्या जवाब दिया? मैं क्या कहता उसे? अब जो कुछ भी कहना है तुम बताओ, मैं तो कल ही अदालत में फैसला सुनाऊंगा। काजी ने भरी हुई नज़रों से अबुल कादिर को देखते हुए कहा। यह सुनकर लम्हे भर के लिए अबुल कादिर के चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई। यह सुनकर अबुल कादिर समझ गया कि काजी के दिल में लालच आ गया है और अगर उसने जुनैद के हक में फैसला सुना दिया तो मेरे इतने दिनों की गई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सज़ा और बदनामी अलग मिलेगी। अगर वो उसे 1500 अशरफियाँ दे दे तो भी वो सज़ा और बदनामी से बचने के साथ साथ 1500 अशरफियों का मालिक बन जाएगा। ये ख्याल आते ही उसने काजी से जल्दी से कहा कि हजूर, जुनैद अगर आपको 1/3 अशरफियाँ दे रहा है तो मैं आपकी खिदमत में निस्फ अशरफियाँ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप फैसला मेरे हक में ही करें। ठीक है, आप मेरे हिस्से की अशरफियाँ अभी मुझे दे दें और फ़िक्र से आज़ाद होकर सो जाओ। काजी ने उसे मुत्तमईन करते हुए कहा। अबुल कादिर ने उसी वक़्त थैली का मुँह खोला और 1500 अशरफियाँ गिन कर काजी के हवाले कर दी। काजी साहब के चले जाने के बाद अबुल कादिर भी नींद की आगोश में समा गया। अगले रोज़ जब दोनों को काजी की अदालत में पेश किया गया तो जुनैद का चेहरा संजीदा मगर पुरसकून था, जबकि अबुल कादिर के होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सी चमक थी। काजी ने दोनों के चेहरों पर नज़र डाली और फिर अबुल कादिर की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है,
अब तुम दोनों अपनी अपनी थैलियों की अशरफियाँ गिनकर दिखाओ। काजी साहब ने अदालती कार्रवाई का आगाज करते हुए अबुल कादिर से कहा। काजी साहब की बात सुनकर अबुल कादिर उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि काजी साहब अशरफियाँ गिनने के लिए क्यों कह रहे हैं। उसे सोच में डूबा हुआ देखकर काजी ने अपनी बात फिर दोहराई और कहा, अबुल कादिर क्या बात है, किस सोच में गुम हो? अपने कौल के मुताबिक अपनी थैली में मौजूद 3000 अशरफियाँ गिनकर मुझे दिखाओ। ये सुनकर तो अबुल कादिर के होश ही उड़ गए। उसकी थैली में तो सिर्फ 1500 ही अशरफियाँ बची थी। अब अगर वो ये कहता कि उसकी अशरफियों में से 1500 अशरफियाँ काजी ने ले ली हैं तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। काजी उसे झूठ बोलने और गलत बयानी से काम लेने के जुर्म में उसे सजाए कैद सुना देगा। अबुल कादिर को खामोश खड़ा देखकर काजी ने अपने 2 सिपाहियों को हुक्म दिया कि अबुल कादिर के हाथ से थैली लेकर पूरी अदालत के सामने अशरफियाँ गिने। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की और अशरफियाँ गिनना शुरू कर दी। गिनती ख़त्म हुई तो थैली में सिर्फ 1500 अशरफियाँ थी। बाकी अशरफियाँ कहाँ हैं? काजी ने अबुल कादिर से पूछा। काजी साहब की बात सुनकर अबुल कादिर हक्का बक्का रह गया और सज़ा के खौफ से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके कानों के सामने साएं साएं की आवाज़ गूंजने लगी। उसकी हालत देखकर काजी ने कहा, शायद तुम मेरा जवाब देने की पोजीशन में नहीं हो। सुनो, मैं बताता हूँ कि इस थैली की बाकी 1500 अशरफियाँ कहाँ हैं। ये कहकर काजी साहब ने एक सिपाही को इशारा किया और उसने अंदर से एक और अशरफियों की थैली लाकर सबके सामने उलट दी। जब वो अशरफियाँ भी गिनी गई तो वो भी पूरी 1500 थी। गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज को, बड़ा होशियार और चालाक बनता था। ये कहते हुए काजी साहब ने उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और हुक्म की तामील करते हुए सिपाहियों ने अबुल कादिर के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। अदालत में मौजूद किसी की समझ में भी ये नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हुआ। अचानक से अबुल कादिर मुजरिम कैसे साबित हो गया, जबकि सारे गवाह और सबूत तो उसी के हक में थे। अब काजी साहब ने अपने फैसले की वजाहत करते हुए अदालत में मौजूद सभी लोगों को बताया कि रात को वो पहले जुनैद के कमरे में गए। वो आराम और सुकून की नींद सो रहा था। मैंने उसे जगाकर कहा कि वो मेरे साथ सौदा तय कर ले, मैं फ़ैसला उसके हक में कर दूंगा। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि शर्फी भी बतौर रिश्वत नहीं दूंगा। उसे अपने अल्लाह और उसकी रहमत पर पूरा यकीन है। मैं अपने माल की ज़कात अदा करता रहता हूँ। ये मुझे मेरे झूठ बोलने और हुकूमत का टैक्स बचाने की सज़ा मिली है। मैं झूठ बोलकर ये दूसरा जुर्म नहीं करना चाहता। और फिर जब मैं अबुल कादिर के कमरे में पहुंचा तो ये जाग रहा था और मेरी आवाज़ सुनते ही ये उठ बैठा और मैंने इसे ये बताया कि जुनैद मुझे 1000 अशरफियाँ देने के लिए तैयार है। अबुल कादिर ने मुझे 1000 अशरफियों की पेशकश की और आधी अशरफियाँ मुझे गिनकर भी दे दी। ये 1500 अशरफियाँ ही हैं जो इसने बतौर रिश्वत मुझे अदा कर दी और यही उसके जुर्म और इसकी साजिश का सबूत हैं। वाकई जुनैद इन अशरफियों का मालिक है और ये धोखेबाज ठग है। काजी साहब की वजाहत सुनकर अबुल कादिर का सर शर्म से झुक गया और जुनैद का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। काजी साहब ने उसे अशरफियों की थैली देते हुए कहा, टैक्स बचाने के जुर्म में तुम्हें बतौर सज़ा 50 अशरफियाँ जमा करवानी पड़ेंगी। अब तो सभी काजी साहब के इंसाफ और उनकी जहानत की तारीफ़ें करने लगे और ऐसे एक सच्चे और ईमानदार आदमी को उसका हक मिल गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।